کہ جس طرح سگریٹ پینے کا مزہ ہوتا ہے نا, اس طرح سگریٹ کے بارے میں سوچنے کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے. یہ بلا وجہ گائے کی دم بے سبب نہیں غالب. آپ نے کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو ایسے ہی پیپر کو رول کر کے, اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو ہے نا, بلا وجہ ہوتا تو کیوں کرتے؟ جی سوری, بڑے بھی کرتے ہیں اور کبھی بچے بھی کرتے ہیں. پلس ان کے اندر تھوڑا تھوڑا کنی بھی ہوتی ہے. وہ جب پتنگ کا ویٹ بیلنس تھوڑا سا ٹورڈز اے سرٹن سائڈ ہوتا ہے نا, تو وہ پھر اس طرف سوے کرتی ہے. تو ہم انسانوں کے اندر جینیٹیکلی کچھ سوئنگ بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یہ جو نظر کا کمزور ہونا ہے یہ جینیٹک ہے نا, تو اس میں کسی کا کوئی قصور تو نہیں ہوتا. لیکن نشے کی بیماری کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قصور ہے. ہم انسانوں کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. کیا دنیا میں صرف ڈرگ ایڈکٹس ہی سیلف سیبوٹاجنگ بیہیویئر میں انگیج کرتے ہیں, یا دوسرے لوگوں کو بھی ہم اپنی مرضی کے خلاف ایکٹ کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ میں صبح واک کروں گا, اور جو ہی صبح ہوتی ہے تو ان کا واک کرنے کا آئیڈیا بدل جاتا ہے. تو یہ تو انسانوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ نہیں. بیماری تو یہ نہیں ہے, بیماری یہ نہیں ہے. بیماری یہ ہے کہ وہ کھانے کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتا جیسے پہلے قدرت اس کے کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کو آٹومیٹیکلی فلالیسلی چلا رہی تھی نا. بیماری یہ نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھاتا ہے, بیماری یہ ہے کہ وہ میٹھا کھا نہیں سکتا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن اسی کے اندر میٹھا کھانے کے خیالات ہر وقت آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. بیماری یہ ہے. اب وہ کیسے اپنے خیالات پر قابو حاصل کرے؟ وہ اس سلسلے میں جان سکتا ہے کہ تھاٹ نگیشن کیا ہوتی ہے, یا انٹرونشن میں سے گزر سکتا ہے, یا اپنے تھاٹس پر کیسے قابو حاصل کرتے ہیں, یا وہ اپنی لیمٹس کو انڈرسٹینڈ, یعنی وہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جس کے بعد اس کا میٹھا کھانے کی آوازیں کم ہو جائیں اور کانسیکوینسز کی آوازیں بڑھ جائیں. آوازوں پر کنٹرول نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کیپیبلٹیز پر کام کر کے, اسی طرح اگر ہمیں کچھ تھاٹس تنگ کرتے ہیں اور ہم ان کی جگہ دوسرے تھاٹس, دوسری پیراڈائمس, انڈرسٹینڈنگ تھاٹ کو چیلنج کرنا, بہت سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہمارے حالات تو بہتر ہوں گے نا. اتنی بے بسی نہیں ہوتی انسانوں کی جتنی ہمیں لگتی ہے. انسان اتنا بے بس نہیں ہے. پر ایک مسئلہ ہے نا, میرے لیے یہ سوچنا آسان ہے کہ میں بے بس ہوں اور واک کرنا مشکل ہے. میرے لیے یہ سوچنا آسان ہے کہ میں وکٹم ہوں, مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو مجھے کتنا میرے ساتھ ناانصافی قدرت نے کر ڈالی ہے. پر واک کرنا مشکل ہے, یا کھانے کو ہینڈل کرنا مشکل ہے, یا یہ چیزیں اس لیے بھی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ انہیں بار بار کرنا پڑتا ہے. واک کرنے سے انسولین ریزسٹنس پر کام ہوتا ہے, واک کرنے سے اور بڑے کام ہوتے ہیں, ویٹ مینیج ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, لائٹ ایکسرسائز اور جو واک ہے نا, اس سے بہتر میں نے نہ پڑھا ہے نہ ایکسپیرینس کیا ہے طریقہ کار جس سے بندہ اپنی بھوک کو مینیج کر سکے. پر یہ چاہت ٹھیک نہیں ہے نا, یہ پریکٹیکلی وائبل چاہت نہیں ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. صحت یابی یہ پاسبل ہے, دنیا میں لوگ کرتے ہیں, ویلنگ ویز میں لوگ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ سینٹرز میں لوگ جاتے ہیں, کئی مرتبہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے بغیر اے کی فیلوشپ یا این اے کی فیلوشپ میں آ کے کر دیتے ہیں. لیکن شروع میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نشے سے جان چھڑانے سے پہلے نشے سے نفرت کریں گے, دس از ٹو مچ ٹو آسک. اگر ہم قبل از وقت کسی سے کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے اور اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ دس از ٹو مچ ٹو آسک. 10 ٹاسک فار ریکورنگ ایڈکٹس یاد آ گئے, اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ لرن ہاؤ ٹو ہیٹ ڈرگس. اتفاق کی بات ہے کہ جسے ہم میں تو خیر اسٹیئنگ وہ اس کو freeing someone you love from addiction and other drugs from alcohol and other drugs کو
बाइबल ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट भी समझते हैं। स्कॉट मैकमिलन और उनकी किताब का टाइटल है फ्रीइंग समवन यू लव फ्रॉम अल्कोहल एंड अदर ड्रग, फ्रीइंग समवन यू लव। उसमें 10 टास्क फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स है और उन 10 टास्क में किसी जगह ये नहीं है कि लर्न टू हेट योर ड्रग्स। इसको ना एडिक्शन ट्रीटमेंट और रिकवरी की लैंग्वेज में कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, ऐसी उम्मीदें लगाना जो पूरी नहीं होंगी। मैजिकल थिंकिंग इसे ही कहते हैं, डिल्यूजनल। और जब पेशेंट्स में ये होता है, इस तरह की सोचें, तो इसे डिल्यूजनल थिंकिंग कहा जाता है। आप 12 स्टेप प्रोग्राम की लैंग्वेज को अजीबो गरीब देखेंगे, उसमें ढंडोरा पीटा जाता है बार बार, वी मी, उसमें यू या दूसरे लोगों का कोई दखल है ही नहीं। Isn't that strange? उसमें दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं कहा, उसमें कहा ही नहीं है कि अगर दूसरे लोग प्रोवोकिंग करन तो उन्होंने सीधा कर देना। ये भी नहीं कहा कि दूसरे लोग गलतियां करें तो क्या करें। उसमें फ़कत दूसरे लोगों का जिक्र पता कहाँ आता है। एक तो यहाँ पे आता है 5th स्टेप में कि वो जो हमने 4 स्टेप इन्वेंट्री बनाई है उसको हमने खुदा से, अपने आप से और किसी दूसरे इंसान से शेयर करना। और फिर अगले 7 स्टेप और उसके बाद जिक्र आता है जिसमें हम कहते हैं कि हमने माजरत करनी है, लेकिन वहाँ नहीं करनी जहाँ पे माजरत करने से फौरी तौर पर किसी झगड़े के बढ़ जाने का अंदेशा हो। उसमें किसी जगह पर भी दूसरे लोगों के बारे में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? पर हम कई मर्तबा जिद करते हैं कि मैंने दूसरों को बदलना है क्योंकि मैं ठीक हूँ। ऐसे थोड़ी चेंज होते हैं लोग। मेरे ठीक होने से आपकी चेंज का क्या ताल्लुक है यार? आप तो तब चेंज होंगे जब आपके दिल मानेगा मैं जितना मर्जी ठीक हूँ। व्हाट डू यू? इंसान ना जब मानता है तब मानता है, और जब जिद करता है और दलील देता है और आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो इंसान को ये भी मैंने देखा है कि हम जिद और आर्ग्यूमेंट में जाएं ना तो हम में से कुछ लोग यकीन करने लगते हैं कि तरबूज हाथी का अंडा होता है। हालांकि तरबूज हाथी का अंडा नहीं होता, लेकिन आर्ग्यूमेंट में जब हम फंसते हैं तो हम फंस जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक बड़े इंटरेस्टिंग जेंटलमैन से मिला जिनसे मैंने बात के दरमियान पूछा कि हु इज़ योर बॉस, तो उन्होंने कहा नोबडी इज़ माय बॉस, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो मैंने कहा नहीं, योर क्लाइंट इज़ योर बॉस। और मैंने फिर उन्हें ये भी कहा कि जॉब में बड़ी मज़े होते हैं जिसमें आप किसी 8 घंटे कोई आपसे कोई बात कहता है, लेकिन जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपके रहे से मज़े भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उनका ख्याल था कि उनका कोई बॉस नहीं है। मैंने कहा जनाब कल रात 10:30 बजे भी आप लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि आपके ऑफिस का टाइम है 9 to 5, लेकिन वो अच्छा मैं उनके घर संडे वाले दिन बैठा हुआ था। पर उन्हें ना ये सुन के बड़ी, वो जो अपने आप से कहते हैं ना नोबडी इज़ माय बॉस, नोबडी इज़, उनको मज़े बड़े आते हैं। कई मरतबा हमारे अंदर ना एक मलंगी छुपा होता है। मलंगी का पता है आपको? एक डिफाइंट पर्सन था कि वो कहता था कि असी नहीं मननी किसी दी। कई ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो बड़े मशहूर हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी खज्जल ख्वारी में थी। ना वो कहीं आ सकते थे ना जा सकते थे, रातों को सफ़र करते थे, दिन में उन्हें लोग पहचान लेते थे, उनके सर पर रिवॉर्ड या बाउंटी होती थी। और हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Because they had an affinity to defy. I don't know, you can ask yourself. Defying is a painful relationship problem. किलकिली पड़ी रहेगी। जब हमें डिफाइंस से मेंटल पीस मिले तो इसका मतलब है हम में कुछ प्रॉब्लम है। अता भाई, अगर मुझे खाने से प्लेजर मिले और ये चीज़ मेरी सेहत को ख़राब करती रहे तो इसका मतलब है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये आप ही डिफाइन, ये आप ही फैसला कर सकती हैं। मैं तो आपके मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं डिफाइंस के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमें डिफाई करके मज़े आने लगें तो ये अच्छे आसार नहीं है। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर में जब हाई आता है तो मज़े आते हैं ना, पर वो सेहतमंद नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस टेरिटरी। हम कुछ लोगों की बात नहीं कर सकते जो बच गए, और उन सारों को इग्नोर नहीं कर सकते जो बर्बाद हो गए। दैट इज़ नॉट अ वे टू गो। देखिए अगर आप 120 किलोमीटर्स पर आवर
कि स्पीड लिमिट से लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होगा, लेकिन अगर आप उसे 150 कर दें तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, मर्जी है, बहुत रिस्क बढ़ जाएगा, फिनोमिनली बढ़ जाएगा। तो वो जो एनर्जी के घोड़े पे सवार हो के लोग कुछ ना कुछ करते हैं और फिर अच्छा उनका भी बाद में कुछ नहीं बचता, उनको भी बड़ी मुश्किल पेश आती है अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपना फ़ायदा वो नहीं देख पाते, उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ और मैं में उनके लिए बड़ी ख़राबियाँ होती हैं पर उन्हें नज़र नहीं आ रही होती उस वक्त। तो इससे जान छुड़ानी चाहिए, इससे लाजमी जान छुड़ानी चाहिए। हम इंसानों के अंदर कई ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं पर हमें वक्ती तौर पर उस नुकसान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उसके नतीजे में इन द लॉन्ग रन हमारा बहुत सा नुकसान हो जाता है। ये जितने भी साइक्लिकल प्रोसेसेस हैं उसमें आप उसके किसी भी स्टेप को एलिमिनेट कर दें, ब्रेक कर दें, पूरा प्रोसेस नीचे आन पड़ेगा। पर जब हमें अपने हिस्से से करना होता है ना तो वहाँ पर हमारी अना दरमियान में आ जाती है और हमें कहती है कि तुम करो ना, मैं क्यों करूँ, मैं तो ठीक हूँ। जब हमें अपना आप इतना ठीक लगना शुरू हो जाए कि फिर हमें नताइज की परवाह ना रहे तो इस ट्रैप को कहते हैं राइचसनेस ट्रैप, कि हमें अपना आप इतना ठीक लगे कि हमें मुफाद ही नज़र ना आए और हम कहें कि मैंने ठीक साबित होना है, भले इसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, मेरी नींद ख़राब हो जाए, मेरा सुकून ख़राब हो जाए, जो भी हो। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।